الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. શુક્રિયા. આપણે સૌ અહીંયા ફક્ત વકફ જાગૃતિ અભિયાન હેઠળ વધુમાં વધુ વકફની મિલકતોની સાચવણી કેવી રીતે કરવી અને ઉમ્મીદ પોર્ટલ ઉપર તેને રજિસ્ટ્રેશન કરવાની આસાનમાં આસાન રીત કઈ હોઈ શકે એને જાગૃતિ કરવા માટે આપણે વડોદરાથી મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ ડેરીવાલા અને બીજા અન્ય મહેમાનો આવેલા છે. અત્યારે આપની સામે વકફના વકીલ શબ્બીરભાઈ શેખ આપને માહિતી આપશે. अस्सलाम वालेकुम। जमीयते उलमाए हिंद डभोई यूनिटी फाउंडेशन डभोई द्वारा वकफ एक्ट जागृति सम्मेलन आज योजवामां आवेलो छे अने ये सम्मेलनना उपक्रमे डभोई शहर डभोई तालुका तेमज आजूबाजूना जे गामों छे कि ज्यां वकफ इदाराओ आवेला छे ये वकफ इदाराना मुतवल्ली साहेबो अहींया पधारेल छे। हूँ यूनिटी फाउंडेशन डभोई तरफथी एमनुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मने आनंद थाय छे के सारी एवी संख्या में मुतवली हजरातो आव्या छे। खरेखर जागृति अभियान शरू थई गयो छे एवुं लागे छे मने, पण हजू भी विशेष थशे एवी अपेक्षा छे अने थवुं ज जोईए। कारण के तमे जाणो छो अथवा नथी जाणता तो वकफ एमेन्डमेंट एक्ट भारत सरकारे बंने पार्लामेंटनी अंदर पसार करी दीधो छे अने 8/4/2025 थी तेनो अमल शरू थई गयो छे। नो डाउट के आ कायदानुं सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज करवामां आवेलो छे, परंतु एमां सुप्रीम कोर्ट शुं फैसलो आपे छे ए हजू अनिश्चित है। परंतु भारत सरकार
ના લઘુમતી બાબતના મંત્રાલય દ્વારા વકફ મિલકતોના ડિજિટાઇલાઇઝેશન અને વ્યવસ્થાપન માટે નવું કેન્દ્રીય પોર્ટલ, જેને ઉમ્મીદ પોર્ટલથી ઓળખવામાં આવે છે, જેનું લોંગ ફોર્મ એવું છે કે ઉમ્મીદ યુનિફાઈડ વકફ મેનેજમેન્ટ એમ્પાવરમેન્ટ એફિશિયન્સી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, એનું આખું ફૂલ ફોર્મ આ છે, પણ એને ટૂંકમાં એને ઉમ્મીદ પોર્ટલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે ઉમ્મીદ પોર્ટલ છે એનું નોટિફિકેશન માઇનોરિટી અફેર્સ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું છે. એ નોટિફિકેશન પ્રમાણે જેટલી બી વકફ ઇદારા છે એની જે મિલકતો આવેલી છે એ વકફ મિલકતોનું પોર્ટલ અને ડેટાબેઝમાં રજિસ્ટ્રેશન કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/11/2025 આપવામાં આવેલી છે. તો 30/11/2000 સુધીમાં કે તેના પહેલાં જેટલા બી વકફ ઇદારા છે એ વકફ ઇદારાઓનું અને વકફ ઇદારાઓની જે મિલકતો છે એનું રજિસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત છે. બીજું કે જો તમે આમાં જો ચૂક કરશો અને મિલકતોની કે વકફનું રજિસ્ટ્રેશન નહીં કરાવો 30/11 સુધીમાં, તો ઘણી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. તમારી વકફ મિલકતો કમી થઈ શકે છે યા વકફ બી તમારું રદ થઈ શકે છે. આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડશે. તે વખત વકફ મિલકત તરીકે નહીં રહી શકે, વકફ બી નહીં રહી શકે. આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે. અને આવા સમયે જો તમે 30/11 સુધી નહીં કરાવી શકો તો તમારે એની મુદત વધારવા માટે વકફ ટ્રિબ્યુનલની અંદર અરજી કરવાનો પ્રસંગ આવશે. અને એ અરજીની પ્રક્રિયા ઘણી મુશ્કેલભરી હશે. અને ત્યાંથી જો વકફ ટ્રિબ્યુનલમાંથી તમને ઓર્ડર મળે મુદત વધારવાનો, તો જ તમે આ પાછું નવેસરથી એ કરી શકો છો. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિઓ ના સર્જાય અને આપણી જે વકફ મિલકતો છે એ વકફ મિલકતો સચવાઈ રહે. રજિસ્ટ્રેશન થવાથી આપણી મિલકતો જે છે વકફની કે વકફ એ પ્રોટેક્ટ થશે, એને કાયદાનું રક્ષણ મળશે. એટલે આ કરવું ફરજિયાત છે. મેં વધુમાં અમારા જે બહારથી મહેમાનો આવેલા છે, હજરત ઇમરાન મુફ્તી સાહેબ, અમારા એડવોકેટ સાહેબ શ્યામવાલા સાહેબ, બીજા બી છે, એ તમને વિગતવાર સમજાવશે. પરંતુ તમને સિમ્પલ એટલું જ કહું કે કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. એટલું કે તમારા અત્યાર સુધી કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કલેક્ટ ના કર્યા હોય તો એ કરવાનું આજથી જ માંડી પડો. તમને અત્યારે જે રજિસ્ટ્રેશન માટે જે તમારે ડોક્યુમેન્ટ તમારે કલેક્ટ કરવાના છે એની યાદી આપવામાં આવશે. એ યાદી પ્રમાણે તમે એક વખત એની પાછળ લાગી જાઓ અને ગમે ત્યાંથી એ ડોક્યુમેન્ટ એક વખત એની ફાઇલ બનાવી લો. ફાઇલ બનાવ્યા પછી જે તે સેન્ટર શરૂ થશે ત્યાં તમારે એ ડોક્યુમેન્ટ સાથે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકશે. એટલે પહેલું કામ તો અત્યારે જે ભાઈઓ જે મુતવલ્લીઓ સૂઈ રહ્યા છે એ જાગી જાય અને મંડી પડે ને જે કંઈ કાગળો ખૂટે છે એ એની પાછળ લાગી જાય અને કાગળો પહેલાં કલેક્ટ કરે, એની ફાઇલ બનાવી લે ને ત્યાર પછી જ રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકશે. એટલે આ કામ પહેલું કરવાનું છે. અને બીજી ખાસ વાત એ કે બીજી કોઈ માથાકૂટ કરવાને બદલે તમારા વકફના જે પીટીઆરમાં જે મિલકતો નોંધાયેલી તમને દેખાય છે, પહેલાં તો એને તમે એના લેટેસ્ટ જે 7/12 ઉતારા હોય કે પ્રોપર્ટી કાર્ડ હોય, જે કંઈ હોય લેટેસ્ટ, પહેલાં એને તમે કવર કરી લો. તમારું પીટીઆર છે, પ્રમાણપત્ર છે, ટ્રસ્ટીઓના આધાર કાર્ડ, ફોટા, એ બધી વસ્તુઓ તૈયાર રાખો. બરાબર? ત્યાર પછી તમને રજિસ્ટ્રેશન માટે તમને આસાની થઈ જશે. એટલે હવે વધુ ન કહેતા હવે આવેલા જે મહેમાન છે
તમે કહેશો? હમ 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 હવે તમને અહીંયા એક જે યાદી આપવામાં આવશે, દરેકને કે આપી હશે, તો એ યાદી પ્રમાણે એક તો તમને જણાવું કે ટ્રસ્ટના પીટીઆરની નકલ, ટ્રસ્ટનું પીટીઆર હોય છે, ના હોય તો વકફ બોર્ડમાંથી તાત્કાલિક કઢાવવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી દો. પછી ટ્રસ્ટનું નામ, સરનામું, પુરાવા, એનું કોઈ ઈમેલ હોય કોઈ ટ્રસ્ટીનો તો તે, ટ્રસ્ટીઓના નામ, સરનામા, મોબાઈલ નંબર, એમના ફોટા, આધાર કાર્ડ, ઇલેક્શન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોય તો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, જન્મનો દાખલો, લાઇટ બિલ, વેરા પાવતી, એ બધું તૈયાર કરી લો. અચ્છા, મુતવલ્લી પર કોઈ ફોજદારી કાર્યવાહી થયેલ છે કે નહીં તેની વિગતો એ જાણવી પડશે. વકફ મિલકતના નવા રેવન્યુ ઉતારા 7/12/8, આકારણી પત્રક, પ્રોપર્ટી કાર્ડ, વેરા પાવતી, નકશાઓ એ કઢાવી લેવાનું. અચ્છા, ઘણીવાર પીટીઆરમાં જે તે વખતે મિલકત નોંધાયેલી હોય છે તો જૂના સર્વે નંબર મોટા ભાગે જોવા મળે છે, તો ને અત્યારે રીસર્વે થયા હોય તો નવા નંબર પડેલા હોય, તો એ નવા નંબરથી, જૂના સર્વે નંબરથી નવા સર્વે નંબરનું લેટેસ્ટ રેવન્યુ રેકોર્ડ અને 7/12 તમારે કઢાવી લેવાનું. પછી જે મિલકત છે, વકફ મિલકત જ્યાં આવેલી છે એની જંત્રી મુજબ હાલની જે બજાર કિંમત કેટલી થાય છે એ તમને જંત્રી મળી આવશે. કોઈ પણ તલાટી કે તમે સેવા સદનમાં જશો તો ત્યાં તમને જંત્રી મળી આવશે કે ભાઈ આ એરિયાની જંત્રી કઈ, તો એ જંત્રીનો એનો બજાર ભાવ કઢાવી લેવાનો. બીજું કે જે મિલકત છે ટ્રસ્ટની, ખેતી હોય કે સ્થાવર મિલકત હોય, તો એની ચતુર્દિશા લખી લેવાની આપણે અલગ કાગળ પર કે ભાઈ આ મિલકત છે. અત્યારે આપણે જે મહીદૈયા જમાતખાનામાં બેઠા છે તો એની ચતુર્સીમાં એટલે પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણમાં શું શું આવ્યું છે એ કાગળ પર લખી લેવાનું, જેથી કરીને રજિસ્ટ્રેશન વખત તમારે મગજ દોડાવવું ના પડે અને તમે આસાનીથી લખી શકો. બીજું કે જે બી વકફ ઇદારો હોય છે તો દર વર્ષે કાયદા પ્રમાણે એનું ઓડિટ કરાવવું ફરજિયાત છે. વાર્ષિક હિસાબો તમારે કરાવવા પડે અને દર વર્ષે ઓડિટ કરાવવા પડે. તો એના 3 વર્ષના હિસાબો તમારે આ રજિસ્ટ્રેશન વખત જરૂર પડશે. એમાં 21-22, 22-23 ને 23-24, 24-25 નહીં હોય તો ચાલશે, પણ છેલ્લા 3 વર્ષના હિસાબોના ઓડિટ થયેલા હોવા જોઈએ. ના કરાયા હોય તો એની પાછળ લાગી જાઓ. હજુ આપણી પાસે એવું સમજો કે આજે ઓક્ટોબર મહિનો ચાલી રહ્યો છે, 30/11 છેલ્લી છે, એટલે દોઢેક મહિના જેવો સમય રહ્યો છે, તો કોઈ તાત્કાલિક કોઈ કરી આપતા હોય તો છેલ્લા 3 વર્ષના હિસાબો ઓડિટ કરાવી લો અને એનું ઓડિટ સ્ટેટમેન્ટ જોઈશે આપણને. ઘણી વખત આપણી મિલકતો પર કોઈ એન્ક્રોચમેન્ટ એટલે કે દબાણ થયેલું હોય તો કોણે દબાણ કરેલું છે અથવા એની સામે આપણે કોઈ દાવાદોઈ કર્યા હોય તો એના કેસના પેપરો કોર્ટના, એની બી માહિતી તમારે રાખવી પડશે. કોઈ મિલકત ભાડેથી આપેલી હોય ટ્રસ્ટની તો એ કઈ મિલકત આપેલી છે, કયા ભાડુઆતને આપેલી છે, શું ભાડું લેવામાં આવે છે, એની વિગતો તમારે લખી લેવી પડશે. જે મિલકત વકફની છે એના ફોટોગ્રાફર તમારે પાડી લેવા પડશે. કોઈ સ્થાવર મિલકત હોય, મકાન હોય, દુકાન હોય, ખેતીની જમીન હોય તો એના ફોટોગ્રાફ બી તમારે પડાવી લેવા પડશે. ટૂંકમાં આ બધી પહેલાં તો જે તમને યાદી આપવામાં આવેલી છે, પહેલાં તો એ યાદી પ્રમાણે તમે એક વખત ફાઇલ બનાવી લો. ના હોય તો એની પાછળ તમે મંડી જાઓ ને એને ગમે ત્યાંથી કલેક્ટ કરી લો. ત્યાર પછી જ તમારું ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકશે. હવે
અમારા એડવોકેટ શ્યામવાલા સાહેબ તમને વધુ માહિતી આપશે. શ્યામવાલા સાહેબ. હા, મૌલાના મોહિન સાહેબ અહીંયા સ્ટેજ પર આવશે અને તમને વધુ માહિતી આપશે. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह आप लोगों के मजमे को देख कर के ये लग रहा है कि अभी भी मुस्लिम कौम बेदार है. अल्लाह ताला इन्हें बेदार रखे, क्योंकि जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं. आज हमारा यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह हम आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, कार्यवाही है, अमल है, उन तमाम चीज़ों को हम बखूबी अंजाम देंगे. देखो, किसी भी चीज़ को सर करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और हमारी ये कुर्बानी है कि हम अपने आराम को, अपने इलाकों को, अपने गांव को, तमाम चीज़ों को छोड़कर इस धूप के आलम में, इस गर्मी की सीज़न में हम यहाँ पर पहुँचे हैं. अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कामयाब कर दे और हमारे औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत कर ले. ये हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है. इतनी बड़ी नेमत है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं. आज आप इंग्लैंड में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, वहाँ आपके मुर्दे को दफन करने के लिए, अभी हमारे ससुर का इंतकाल हुआ तो उनको दफन करने के लिए 2 लाख रुपए की कब्र की ज़मीन हमें लेनी पड़ी इंग्लैंड के अंदर. तो आज ये हाल यहाँ भी आने वाला था, लेकिन जमीयत उलमा और उनके और जितने मुआविनीन थे उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक हमें कामयाबी मिली. लेकिन ये कामयाबी कैसी है? बीच में है, अभी मुकम्मल कामयाबी नहीं है. उसी बीच इन्होंने एक और चीज़ को कर दिया कि भाई आपको उम्मीद पोर्टल के अंदर अपनी तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको रजिस्टर करना है. रजिस्टर तो पहले से ही है, लेकिन इसको दोबारा उनके अंदर एंट्री करवा करके ये प्रूफ करना है कि ये हमारा है, ये हमारा है. और ये हमारा नहीं, ये किसका है? बोलो ना भाई, किसका है? अल्लाह का है. और अल्लाह ताला के जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह के मानने वाले लोगों की जिम्मेदारी है. तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इसकी हिफाजत अगर हम करेंगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो. अल्लाह के दीन की मदद करना क्या है? किस चीज़ से हम? अल्लाह हमारा मोहताज है? नहीं, अल्लाह हमारी ही कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह हमें ही कामयाब करना चाहते हैं. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ही एक खुशखबरी वाली आयत उतार दी कुरान में कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा. वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा. तो ये जो वक़फ़ है, वक़फ़ इसको बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है. तमाम इख्तिलाफ़ात से हट करके, तमाम तरह के झगड़ों से हट करके, तमाम बातों से हट करके हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने के नाते, एक अल्लाह के बंदे होने के नाते एक साथ काम करेंगे. इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के औकाफ की ज़मीन को एक इंच, एक तुत्तियांश भी कोई ले नहीं सकेगा इंशाअल्लाह. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम जगे, और जैसे हमारे एडवोकेट साहब रेहान साहब और उसके साहब हमारे मुफ्ती इमरान साहब ये बताएंगे आपको कि किस अंदाज में हमको इनको लीड करना है, हमारा रोल क्या होगा. लोग बहुत सारी बातें फैलाएंगे आपके सामने कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप यूट्यूब के वो तालिब इल्म मत बनो,
यूट्यूब के अपने स्टूडेंट मत बनो। यूट्यूब पर हर अच्छी बुरी चीज़ आती है और सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। अच्छी चीज़ आपके सामने खड़े होकर मैदान में आकर के जो बताएंगे वही अच्छी होगी, वही सच्ची होगी, और इस पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी होगा। तो इंशाल्लाह मैं एडवोकेट रेहान साहब को दावत दूंगा कि ये आगे की जो तफसील है वो आपके सामने जिक्र करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं यहाँ कोई लेक्चर देने के लिए तो नहीं आया हूँ। जैसा हम सबको मालूम है कि हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, थोड़े समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हम आज ये पोजीशन पे क्यों आके खड़े हुए हैं, उस चीज़ को जानने के लिए मैं थोड़ा वक़फ़ का बैकड्रॉप दे दूं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो उलमा आप समझा रहे हैं वक़फ़ असल में वही है। लेकिन जिस मेडिवल पीरियड में जब मुस्लिम का हुकूमत हुआ करती थी, तब जो वक़फ़ के जो मामला चल रहा था वो उलमा और उस वक्त के जो काजी थे वो नक्की करते थे। उस चीज़ के उसके चीज़ें होती थी, उस चीज़ का उसका डिसीज़न होता था। अब ये तक चलता रहा और ब्रिटिश टाइम तक आ गए। और ब्रिटिश में क्या था कि सबसे पहले ये समझना है कि ये वक़फ़ का जो कानून है, जो वक़फ़ चीज़ है, वो जो अभी भी जितने भी कायदे दुनिया में पहले भी और अभी भी जो मौजूद है उससे एग्जैक्ट अपोजिट है। वो कानून ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है, मिल्कत, उसका मालिक कोई भी परमानेंट नहीं हो सकता। वो बदलता रहता है, वक्त के साथ बदलता रहता है। मिसाल के तौर पे ये मालिकी मेरी है, ये पोडियम की, तो मेरे मरने के बाद ये किसी और की हो जाएगी। लेकिन ये वक़फ़ का जो कानून है, बेसिक इसकी चीज़ ये है, तो ये कानून ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी परमानेंट अल्लाह की हो जाती है। तो अभी इसको क्या है कि इसकी मालिकी बदलती नहीं है। तो जो दुनिया का कानून है उससे बेसिक चेंज वो ये है कि इसकी मालिकी परमानेंट ही अल्लाह की होती है। तो अब इस चीज़ के लिए इसको कैसे, मतलब लोग तो मरेंगे, दूसरे लोग भी आएंगे, पर मालिकी अल्लाह की ही रहेगी। उसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो मुतवल्ली, जो ट्रस्ट के मेंबर है, वो बदलते रहेंगे, लेकिन उनकी भी मालिकी का हक नहीं है। मालिकी का हक सिर्फ अल्लाह का है। अब ये चीज़ दुनिया के कानून वालों को समझ में नहीं आई। ईसाई जब हुकूमत कर रहे थे तब ये कानून उनका भी था, पब्लिक ट्रस्ट जिसको बोलते आज भी वजूद में है, पर उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। तो उन लोगों ने क्या करा, वक़फ़ एक्ट पास कर दिया 1810 में। अब उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आते गए, पर उसके अंदर क्या है कि पावर नहीं दिया गया था किसी को, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे के रखा था, क्योंकि उनको पूरा मामला ही समझ में नहीं आया। अभी तक ये चीज़ चला रहे थे उलमा, अब डायरेक्ट उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने रूल फाइनल करके पास कर दिया। अब ये जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद ये जो काम होना चाहिए, जो अभी हो रहा है, वो मैं मानता हूँ कि वो तभी हो जाना चाहिए था, ताकि वक़फ़ की पूरे मुल्क में जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका एक फहरिस्त बन जाता, एक रजिस्टर बन जाता, ताकि अभी यहाँ पे गुजरात वालों को भी पता चले कि दिल्ली में वक़फ़ कितना है और दिल्ली वालों को भी पता चले कि गुजरात में वक़फ़ कितना है। अब इसके लिए पूरा सिचुएशन खड़ा हुआ, पावर शिफ्ट होते रहे, वक़फ़ के चेंजेस आते रहे, और वो पोजीशन को लेते लेते हम लोग अब यहाँ पे आ गए। और यहाँ आज ये खड़े हैं कि कायदा ऐसा आ गया था कि मुसलमान की पावर और अथॉरिटी को हटा के गैरों को भी डाला गया, जिसके लिए अभी तक हम सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी सी लड़ाई चली है और उसके बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है। अब इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, वो हम लोगों ने शायद न्यूज़ में देख के समझा होगा कि हमारे फेवर में है, तो पूरा के पूरा हमारे फेवर में तो है ही नहीं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करी है, नहीं भी करी है। अब लेकिन जो हमारे फेवर की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमको हमारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना है, ताकि एक लिस्ट हमारे पास भी रहेगा और गवर्नमेंट के पास भी रहेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए, चूँकि हमने शायद प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करा था, अपन लाइट की वजह से वो चल नहीं रहा है, तो हम थोड़ा ओरली समझेंगे। समझने के लिए सब सेल फोन सबके पास है, यहाँ पे अपना फ़ोन काट लीजिए सबसे पहले।
ताकि वो देखेंगे ना तो समझ में जल्दी आसानी से आ जाएगा। अपना गूगल या तो वेब ब्राउज़र में जाके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट खोलें। मिनिस्ट्री ऑफ माइनर अफेयर्स ये लिखो गूगल सर्च में भी, तो वो मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट आएगी, उसको क्लिक करो। ये चीज़ भी समझना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि इसमें बहुत सारी फेक चीज़ें भी निकल आती है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी से खोलना है। अब वो साइट खुलेगी ना तो लेफ्ट साइड में एकदम लास्ट कॉर्नर पे उम्मीद पोर्टल करके एक टैब होएगा, उसको क्लिक करो। खुल गया, सबका खुल गया? कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? किसका हो गया वो हाथ उठा करे। ये खुल गई साइट, खुली नहीं खुली? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर हो गया, खुल गया? किसका नहीं खुला? खुल गया। उसमें लेफ्ट साइड में ये आगे के थोड़ा 5-10 मिनट के लिए थोड़ा अपने वेट कर लेते। ये प्रोजेक्टर चालू हो जाएगा तो देखेंगे तो समझ में भी जल्दी से आ जाएगा। तो थोड़ा 5-10 मिनट का अपने वक्त ले लेते। प्रोजेक्टर का बाद में आखिर में करते हैं। अब हम जो है वक्त ज़ाय किए बगैर अभी कोई बयान नहीं करना है, जो मकसद है उसी पे बात करनी है। मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब साथ में जमा हुए हैं। मैं अक्सर बहुत जगह पर जाना होता है तो एक गुफ्तगू थोड़ी हिम्मत करके कर लेता हूँ कि कोई भी जगह पे ऐसा तो है ही नहीं कि सब एक ही ख्याल के लोग हो, एक ही सोच के लोग हो। एक घर में भी ऐसे नहीं होते हैं और एक महल्ले में भी नहीं होते और एक शहर में भी नहीं होते। ये कुदरती निज़ाम हैगा कि हर आदमी की सोच और हर आदमी का एक मसलक और मज़हब अलग होता है दुनिया में। तो कुछ ऐसे उसूल होते हैं जिस पे सब जमा हो सकते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हमें मसलकों पर हम चलते रहें, अपने अपने कामों में मशगूल रहें, लेकिन कौम के जो सिमिलर मसाइल है जिसके अंदर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई हमारे न अक़ीदे के इख्तिलाफ है न इबादत के इख्तिलाफ है, उन इख्तिलाफ न हो और कॉमन मसाइल हो तो उसमें हम बहुत ब्रॉड माइंड करके बैठने की कोशिश करें।
ये हमारे लिए कामयाबी का बहुत बड़ा रास्ता होगा। दुनिया में दो ताकतें हैं, यहूदीज़म और ईसाईज़म। इनका सबसे बड़ा अकीदे का फ़र्क ये है कि ईसाइयों को मालूम है कि हमारे हजरत ईसा को यहूदियों ने जो है मार दिया था। हालांकि हमारा अकीदा नहीं है, कुरान में है कि अल्लाह ने उठा लिया था आसमानों पे। लेकिन इन दोनों के आपस में ये इख्तिलाफ़ है। कितना बड़ा इख्तिलाफ़ है, एक नबी को एक कौम मार दे और दूसरी कौम उसको बर्दाश्त करे, ये नहीं हो सकता। लेकिन पूरी यहूदियत और पूरी ईसाइयत, पूरा यूरोप और जितनी हिम्मत इज़राइल की हुई है वो उसकी वजह से हुई है कि ये एकता इनकी हुई है, जिसकी वजह से पूरी मिडल ईस्ट के अंदर किसी की ताकत नहीं है कि ज़ुबान खोल सके। तो एक मजहबी इतना बड़ा डिफरेंट था, तब भी उन लोगों ने अपनी दुनिया कमाने के लिए 110 मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए और पूरी दुनिया पर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए ये इत्तेफाक किया। तो आज वो लोग अभी फ़िलहाल कामयाब नज़र आते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मानते हैं, कुरान एक है हमारा। चाहे मसलकों में हम अलग हो, लेकिन जब उम्मत के वो मसाइल जिसमें कोई इख्तिलाफ न हो, इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर उसको ज़रूर सोल्व करेंगे। तो कभी भी हमारे अंदर इख्तिलाफात नहीं होंगे और बड़े दिल को लेकर चलना है हमको, बड़े दिल से चलेंगे हम। मैं एक मर्तबा हमारे सारे मसलक के लोग बैठे हुए थे तो मैंने बहुत दिल खोल के बात कही कि क्या बात है हमारी, हम एक मंदिर और मस्जिद वाले जब साथ में बैठ सकते हैं तो दो मस्जिद वाले क्यों नहीं बैठ सकते हैं? दो मस्जिद वाले क्यों नहीं बैठ सकते? आओ बैठो और अपने मसाइल को हम ही सोल्व करेंगे। हमारा मसला कोई सोल्व करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सोल्व करने के लिए। हम भाई भाई है, हम आपस में मोहब्बतों के साथ अपने मसाइल को इंशाअल्लाह सोल्व करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर ये साबित करेंगे कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे मसलक को तुम मान लो, तुम्हारे मसलक को मैं मान लूँ, इस पे छोड़ दो इन मसाइल को, अपने अपने हिसाब से चलो। लेकिन जहाँ कौमियत का मसला आएगा वहाँ इंशाअल्लाह हम सब एक नज़र आएंगे। और ये मसला कौमियत का है, जो वक़फ़ है उसमें कब्रिस्तान भी है, दरगाह भी है, मदरसे भी है, मस्जिद भी है, और सब के ऊपर जो है मुसलसल वेल प्लानिंग जो हमें धीमे धीमे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि अब आखिरी इनका जो हरबा था वो हमारे सामने रख दिया गया है। पहले तो आप सब जानते हैं कि अमेंडमेंट 40 या 40 से अंदर के अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में सारी डिस्कस हुई। उसके बाद उसमें से छांट के 4 अमेंडमेंट के ऊपर हमारे तमाम वकीलों ने बहस की। नंबर 1 पर कि कलेक्टर को कोई भी इख्तियार नहीं होना चाहिए, कलेक्टर को इख्तियार दे दिए गए थे। अल्लाह का शुक्र मानिए अभी इंट्रीम जो ऑर्डर आया है उसमें इतना तो है कि स्टे के मुताबिक है कि वो स्टे जैसा है, बीच में लटका हुआ। तो एक कलेक्टर को ऑर्डर ये दिया गया था कि भाई जितने भी कब्रिस्तान, दरगाहें, मस्जिदें सब हैं वो कलेक्टर की परमिशन से सब काम होंगे। जैसे कि आपकी पुरानी इमारतें जो है वो तमाम पुरानी इमारतों में आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है। हेरिटेज जितनी भी बिल्डिंगें होती है उन तमाम को परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरह हमको अपने कब्रिस्तान, अपनी मस्जिद में पंखा लगाने के लिए कलेक्टर के पास जाकर अर्ज़ी करनी पड़ती है और हमको उसकी परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन ये थोड़ी कोशिशें हुई तो इंट्रीम ऑर्डर के अंदर ये फ़ैसला आया कि कलेक्टर का इख्तियारात अभी नहीं दिए जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जितने भी नॉन मुस्लिम ट्रस्टीज़ बनने वाले थे उनके ऊपर भी स्टे आ गया। यानी ये इंट्रीम ऑर्डर आया है कि भाई ये नॉन मुस्लिम मुसलमान ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी नहीं बनेगा, ये दूसरा ऑर्डर आया। तीसरा वक़फ़ भाई यूज़र था जो बरसों से, 200 बरस से, 300 बरस से चल रहा था और सारा शहर जानता था कि ये मस्जिद ही है, सारा शहर जानता था कि ये कब्रिस्तान ही है। तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे उसके डॉक्यूमेंट हो कि ना हो।
ये बात आप ध्यान रखिए मेरी बात, क्योंकि अब जब डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। लेकिन अभी जो स्ट्रीम ऑर्डर के अंदर, इंट्रीम ऑर्डर के अंदर जो एक फ़ैसला हुआ है वो ये है कि वक़फ़ बाय यूज़र को माना जाएगा, यानी उसको वक़फ़ की मिल्कत माना जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके 200 बरस 300 बरस की मस्जिदें होंगी, कब्रस्तान होंगे, मदरसे होंगे, तो वो लोग अभी परेशान होंगे कि भाई अब क्या होगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा इस पर हम जीत जाएंगे और हम कामयाब होंगे। तो ये वक़फ़ बाय यूज़र के अंदर फ़िलहाल अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई फ़िक्र न करे। अभी फ़िलहाल ये ऑर्डर जो है उसके मुताबिक वो मस्जिद ही रहेगी, वो कब्रस्तान ही रहेगा, वो दरगाह ही रहेगी और वो जो है वक़फ़ के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर थे वो ऑर्डर को एंट्रीम ऑर्डर पे ला के रख दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर आप लोगों को और एक काम सौंप दिया गया कि अब किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए और वक़फ़ की मिल्कतों के ऊपर फिर से कैसे कब्ज़ा किया जाए। एक इंक्रोचमेंट का भी मसला था, वो तो इन लोगों ने पास कर दिया, वो भी एक मुसीबत है। यानी आपकी जो वक़फ़ की मिल्कत है वो मिल्कत के ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और 12 साल उसके गुज़र गए हैं, तो 12 साल के बाद जो है वो उसका मालिक हो जाएगा। एक बड़ी मुसीबत ये है, इसलिए कि वक़फ़ के अंदर से जितनी भी अगर आपकी आवक होती है, कमाई होती है, तो मालूम हैगा कि इस कमाई के ज़रिए से इस कौम के बहुत सारे भले काम हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी आवक को ख़त्म कर दिया जावे तो ऑटोमेटिकली ये कौम जो है वो हाथ पांव बगैर की हो जावे। इसलिए एक ऑर्डर तो ये भी शायद पास हो गया ना, ये पास हो चुकेला है, जो इंक्रोचमेंट का ऑर्डर है। 12 ईयर्स तक किसी ने आपकी मिल्कत पे कब्ज़ा करके रखा है, वो कोर्ट में जावे और वो साबित कर देवे कि 12 बरस 25 बरस से मैं इसका भाड़ुआ दूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अमेंडमेंट रखे गए थे उसमें से एक अमेंडमेंट ये भी था और वो अमेंडमेंट के मुताबिक वो उसका मालिक बन जाएगा। तो चलिए, अभी ये मसाइल तो हमारे सामने बढ़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से 6 महीने पहले ये ऑर्डर निकल चुका था कि भाई आपको जो है अपनी मिल्कतों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्टर तो है सबकी मिल्कतें, लेकिन फिर नया कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे शिकंजे में आप आते जाओ। मैंने अभी राजस्थान में बात की थी कि एक पूरे शहर में, तो अभी तक तो वो शहर वालों को मालूम ही नहीं है कि हमको क्या करना है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी बहुत सारी मिल्कतें जो है वो जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो इन्होंने ये किया कि अब तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाना है हमको। और वो तरीक़ाकार ये होगा कि मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता है तो अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान दें, आपके पास नहीं है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन करेंगे। हमने बड़ौदा में 21 सेंटर कायम किए हैं, उसकी तरतीब भी आपको बता दी जाएगी। 21 सेंटर के ऊपर फिर जो वकील वक़फ़ के ज़्यादा जानकार है उनकी एक कमेटी अलग बना दी गई है। पहले कॉमन सारे मसले हम बता देंगे, उसके बाद जो क्रिटिकल मसाइल है वो यहाँ सोल्व नहीं होंगे तो हम बड़ौदा में वकीलों की टीम के ज़रिए से सोल्व करेंगे। यहाँ सोल्व नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ताहिर भाई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गुजरात में वकील है लीगल सेल के, उनके थ्रू भी इस मसले को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी तरह हमको अपनी ये मिल्कतों को महफूज करना है ताकि आइंदा हमारी नस्लें ईमान और इस्लाम पे बाकी रहे। हमारे लिए हमारा इस्लाम भी और ईमान बहुत प्यारा है और उसके असबाब हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रस्तान, हमारी दरगाहें, हमारे अवलिया अल्लाह की यादगारें, वो सब हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ें हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट के नाम बोलता हूँ, आपको समझा दिया जाएगा। PTR, जो PTR होता है उसकी एक कॉपी, नाम और पते का, वो तो उसके अंदर आपको लिखना हैगा। मोबाइल नंबर देना है आपको, मुतवल्ली के पासपोर्ट साइज़ देना है, फ़ोटो देना है और इसी तरह कोई भी ID देना है आपको। आप जहाँ मत देते जो बोर्ड है आपका, उसका भी लिखना है आपको। आपके ख़िलाफ़ कोई केस है कोर्ट में तो उसको भी लिखना है, कौन सा नंबर का केस है आपके ऊपर। इसी तरीके से जो आपकी संपत्तियां हैं वक़फ़ की, उसकी भी एंट्री करनी है चारों दिशाओं में। इसी तरीके से
पिछले 3 वर्षों का ऑडिट आपको देना होगा। इसी तरीके से आपकी ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है, यानी कोई दबाव कर बैठा है, भाड़ुआत नहीं है बल्कि दादागिरी करके बैठ गया है, तो उसकी भी आपको माहिती देनी है। इसी तरीके से आपकी मिल्कत का कोई केस चल रहा है तो वो केस की भी जानकारी आपको इसके अंदर देनी है। तो बस ये मुख्तसर सा प्रोग्राम, कोई बयान करने का मकसद नहीं है। इसको किस तरीके से हमें फील करना है। आ जाएगी चद्दर? नहीं हो सकेगा, नहीं होगा, दिखता है नहीं दिखता? ठीक है, तो ये मोबाइल के थ्रू थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि इंशाल्लाह इसमें अभी आपके पास 2 महीने ना लगभग, दिसंबर 5 दिसंबर तक का टाइम है। जो एक बात चली थी कि भाई 30 अक्टूबर का टाइम है, लेकिन बाकायदा इसकी वेबसाइट पे जब जाकर देखा है तो 5 दिसंबर तक का टाइम है। पहले आप ये काम कीजिए कि जितने इजी मसले हैं ना उसको सॉल्व कर लो। जो क्रिटिकल मसाइल है उसको आप साइड पे रखो, लेकिन जितने इजी आपके जो डॉक्यूमेंट है, आखिर में आपके पास कुछ नहीं होगा। ये 3-4 पहले डॉक्यूमेंट जो बोले ना उसकी एक मरतबा एंट्री तो करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अभी बहुत सारे वकीलों ने इसका जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन हम समझ सकते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के बाद बहुत सारे वकीलों के, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के आप बयान सुनोगे तो वो ये बताएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन सा ऑर्डर इसके बाद ला सकती है। तो हमारे को भी थोड़ी बहुत अल्लाह पाक ने सूझबूझ दी हैगी कि यही ऑर्डर आएगा कि जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सरकार या कलेक्टर उसको जाकर अपनी मिल्कत में शामिल कर ले। उससे ज़्यादा क्या हो सकता हैगा। अगर शामिल ना करना होता तो रजिस्ट्रेशन हमसे न करवाते, तो नतीजे में घुमा फिरा कर हमारी वक़्फ़ की मिल्कतों को किसी भी तरह इंक्रोच करके ने कब्ज़ा लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जितना हो सकेगा हम अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर मुकम्मल तौर पे अपनी ज़मीनों की मुकम्मल हिफाजत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आप तमाम के यहाँ आने को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह नंबर भी दिए जाएंगे, एक पैम्फलेट बनेगा, किस जगह सेंटर रखना है, वहाँ जाकर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले हुए बच्चों को बिठा दिया जाएगा, ताकि फटाफट महीने के अंदर इस काम को हम मुकम्मल कर देवे। कोई गांव, कोई कब्रिस्तान, कोई दरगाह, कोई चीज़ बाकी न रहे, कोई खानका, कुछ चीज़ बाकी न रहे। जो बाकी रह जाए, कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दिया वक़्फ़ बाय यूज़र है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 100 बरस 150 बरस पुरानी है। इसका जो है वक़्फ़ में भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके घर में भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इंशाअल्लाह उसके लिए अलग से एक मीटिंग बुला लेंगे और जो माहिर इससे भी ऊपर के वकील हैं उनसे मीटिंग करके उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इंशाअल्लाह तमाम साथी तैयार रहना और जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा कर, नहीं है तो आप वक़्फ़ में जाकर निकलवा के ले आओ, निकलवा के उसको रजिस्ट्रेशन करवा लो। इंशाअल्लाह हमारी मिल्कतें महफूज रहेगी। ये तमाम हजरात, जिम्मेदार हजरात, हमारे टाई जो हॉल के अंदर प्रोग्राम रखा गया है, टाई जमात के जिम्मेदार, हमारी यूनिटी के जिम्मेदार, जमीयत के जिम्मेदार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो मेहनत हो रही है, अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी बिल्कुल खाली पड़ा है और मिल्कतें जाने का डर है। अल्लाह का एहसान है कि हम जागे हैं। जिस दिन जागे हैं उस दिन हमारी सुबह हुई है और ये सुबह इंशाअल्लाह अच्छी शाम लाएगी। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब वो जो उम्मीद पोर्टल हमने खोला तो उसमें सबसे पहले हमके क्या करना है, एक साइड पे, राइट साइड पे 2 ऑप्शन होंगे, एक साइन इन का होएगा और एक रजिस्ट्रेशन का होएगा। देखो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अपने वो गूगल पे बोलेंगे भी ना तो भी वो खुल जाएगा। तो वो मोबाइल के उसमें देखेंगे तो लास्ट में आएगा, लास्ट के थोड़ा ऊपर होएगा, लिखेला ही होगा वहाँ पे उम्मीद पोर्टल करके, उस पर क्लिक करना है।
उस पर क्लिक करेंगे तो तुम एक वेबसाइट पे जाओगे जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल, जहाँ पे ये सारा काम रजिस्ट्रेशन का होगा। अब जैसे वो वेबसाइट खुलेगी तो पूरे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उसमें राइट साइड पे येलो कलर का होगा 2 ऑप्शन, एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तो अब वो जो रजिस्ट्रेशन पे तुम क्लिक करोगे ना जी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में लास्ट में है, अभी सबने करा है यहां पे। हो गया ना? वो जिनका हो गया उनसे आप पूछ लो, एक मर्तबा कर लो वही। तो जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पे एक साइड पे एक लॉगिन की डिटेल आएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो वेबसाइट का है ना उसका यूज़र बनना है। अब ये यूज़र कौन बनेंगे? जो मुतवल्ली है, जो वक़फ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है और जो मैनेजिंग कमेटी में, ये उनके लिए है। तो उसके अंदर नीचे पे लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो जो मुतवल्ली है उनकी डिटेल हमको भरने की रहेगी। अब उस डिटेल में क्या क्या है? सबसे पहले अपन का एड्रेस, वो एड्रेस डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। प्रोफेशनली हम क्या कर रहे हैं, यानी कामकाज हमारा क्या है, उसकी डिटेल्स। हमारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है वो। तीसरा, हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब ये डॉक्यूमेंट्स के साथ एक मुतवल्ली अपना आपको ये वेबसाइट यूज़ करने के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हो गया मुतवल्ली का रजिस्ट्रेशन। जैसे तुम वो खोलेंगे ना तो उसमें आएगा कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। अच्छा, अब ये चीज़ भी याद रखना है कि जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करो ना वो ऑथेंटिक करना, जो आपका डेली यूज़ हो, क्योंकि फिर एक बार इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना उसके बाद इसको तुम एडिट के चेंज नहीं कर सकते। तो अल्लाह के वास्ते इसमें जो नंबर आपको ऑथेंटिक यूज़ करते हो, बंद नहीं होने वाला हो, वही नंबर यूज़ करें। अब कैटेगरी में तुम जाओगे तो कैटेगरी में कितनी कैटेगरी है? एक मुतवल्ली की है, एक वाकिफ़ की है, एक नाइब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर, सज्जाद नसीन, ये कैटेगरी है। अब इसमें से जो भी कैटेगरी में हम आते हैं उसको सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद दूसरे ऑप्शन में है किसने उनको अपॉइंट करा, ये मुतवल्ली को किसने अपॉइंट करा। उसमें आएगा अमीन वक़फ़ बोर्ड। ज़्यादातर वक़फ़ बोर्ड होता है, हम जो मुतवल्ली बनते हैं वो वक़फ़ डीड से बनते हैं और वो वक़फ़ डीड को वक़फ़ बोर्ड में जाते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है। तो उसमें कैटेगरी में वक़फ़ बोर्ड या तो फिर मैनेजिंग कमेटी ने सिलेक्ट करा है, तो जिसने हमको अपॉइंट करा है उसको सिलेक्ट करना है। अब जब ये सिलेक्ट कर लोगे तो दूसरा एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर अपन को सिलेक्ट करना है कि कैसे बने। मुंह से बनाए, जैसे वक़फ़ यूज़र में ओरली होता है जनरली, तो वो कैटेगरी वर्बली में आएगी। उसके बाद ऐसे रीति रिवाज से बने तो वो आएगा बाय कस्टम। उसके बाद जो जनरली हमारा चलता है वक़फ़ डीड से, तो वक़फ़ डीड का भी मेंशन है, तो उसको सिलेक्ट करना है। अब जब ये डिटेल भर दोगे, हमारे नाम के जो मैंने बोला ना, जो हमारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए उसके हिसाब से वो डिटेल्स भरनी है। साथ साथ में हमारा एक ऑथेंटिक ईमेल आईडी भी होना चाहिए। और यहाँ पे वही जो नंबर और ईमेल आईडी का दोनों यही रखना है हमको कि जो ऑथेंटिक हम डेली यूज़ करते हैं, जो बदलता नहीं है, जिसके पासवर्ड हमको याद रहते हैं, वही डालना है। तो बार बार ये चेंज नहीं होगा। एक बार तुमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उसके बाद उसका एडिट नहीं होने वाला है। तो ईमेल और नंबर, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक और कैटेगरी आएगी नीचे रिलीजन की। रिलीजन में हम जो रिलीजन है मुस्लिम, इस्लाम, वो आएगा। उसके बाद जो हमारा अकीदा है, सेक्ट बोलते जिसमें, उसमें आ जाएगा शिया, सुन्नी, XYZ, जितने भी हमारी कम्युनिटी है वो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन और हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में देखो यहाँ पे दिया भी है कि एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय है, कि किसी के यहाँ नौकरी करते, वो सब चीज़ हम भर सकते हैं यार। इसके अलावा कोई प्राइवेट बिजनेस है तो वो भी लिख सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद वो कंफर्मेशन के लिए हमको पूछेंगे, तो उसमें यस करना है। पर यस करने से पहले एक बार वापस से हमको पूरी एक बार डिटेल चेक कर लेनी है। अब ये यस कर लोगे उसके बाद ये तुम रजिस्टर हो गए एज अ मुतवल्ली। ये वेबसाइट पे तुम हो गए मुतवल्ली एज अ रजिस्टर्ड। अब ये रजिस्ट्रेशन के बाद वापस हमको होम पेज पे आना है।
अब होम पेज पर आके अब जो हम पहले बताया था 2 ऑप्शन थे येलो कलर में, एक रजिस्ट्रेशन का था और एक साइन इन का था। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हमको साइन इन पे क्लिक करना है। अब साइन इन पे क्लिक करने का बाद हमारी लॉगिन केस होगी, तो जो मोबाइल नंबर हमने डाला था वो मोबाइल नंबर वापस डालना है और OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा। अब वो OTP नंबर डाल के हम लॉगिन करेंगे। तब जब ये लॉगिन होगा उसके बाद पूरा एक पेज खुलेगा जिसमें डैशबोर्ड में हमको लिखना है प्रॉपर्टी, जो हमारी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है उसको एंटर करना है। तो जैसा अभी मुफ्ती साहब ने जो पूरा लिस्ट बताया वो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैंडी होना चाहिए, हमारे पास मौजूद होना चाहिए, मोबाइल में स्कैन भी होना चाहिए। तो अब सबसे पहले उसमें ऑप्शन आएगा कि हम कौन से राज्य से, हमारा स्टेट कौन सा है। तो हम गुजरात से है तो गुजरात का सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा कोई और बाहर का स्टेट वाला कोई है तो वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, जैसे गुजरात के जितने डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद तालुका। अब उसमें ऑप्शन अपने को कुछ ज़्यादा करना नहीं, अपने सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आ ही जाना है, हमको खाली ध्यान से सिलेक्ट करना है हम इसमें कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद पिन कोड डालना है, फिर पूरा जो एड्रेस प्रॉपरली लिख के डालना है वो है, और ID कार्ड हमारा। उसके बाद सिलेक्ट करना है, मतलब जैसे तुम ये प्रूफ का सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करा था तो वहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाजू में एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो उस पर सिलेक्ट करके हमारा डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करना है। वैसे एड्रेस प्रूफ के लिए ये अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वेरा होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके हमको अपलोड करना है। अब हमारी जो रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना है उसके एक साइड पे एक ऑप्शन दिया है। अब ये जो अमेंडमेंट इंटरिम ऑर्डर है उसके बाद इसको ऐड करा गया है। उसमें ये बताया गया कि 6 अप्रैल जिस दिन से कायदा लागू हुआ उसके पहले कितनी प्रॉपर्टी वक़फ़ में है, तो वहाँ पे हमको लिखना है कि 6 अप्रैल के पहले हमारी प्रॉपर्टी, जैसे जितने भी अभी मौजूद है जिसकी भी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है उस पर हमको सिलेक्ट करना है कि हमारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है वक़फ़ बोर्ड में, अब इसको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। तो इसके लिए हमको 6 अप्रैल के पहले वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें यस करना है, और 6 अप्रैल के बाद कोई नया वक़फ़ बना है उसमें नो करना है। फिर उसके बाद कौन से स्टेट में, गुजरात वक़फ़ बोर्ड सिलेक्ट करेंगे हम, गुजरात के तो उसके बाद जो वक़फ़ बोर्ड ने हमारी प्रॉपर्टी को औक़ाफ़ का जो नंबर दिया होगा 4 डिजिट का वो डालना है। अगर 4 डिजिट का नंबर नहीं है, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का या 3 डिजिट का है तो आगे हमको 0 लगाना है। मान लो कि किसी का नंबर 1 है तो आगे 3 0 लगा के 1, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कोड डालना है वो 4 डिजिट में ही डालना है। 1 है तो सिर्फ 1 नहीं लिखना है, 22 है तो सिर्फ 22 नहीं लिखना है, 0 0 0 करके लिखना है आगे। इसके बाद हमारा वक़फ़ का जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद टाइप क्या है वक़फ़ का, तो सुन्नी हो गया, सिया हो गया तो उसमें सुन्नी आएगा। उसके बाद उसका टाइप यूजेज, उसका इस्तेमाल कैसा है, चैरिटी के लिए हो रहा है, रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे मस्जिद मकतब रिलीजियस पर्पस में आएंगे, या तो कॉमर्शियल, किसी ने भाड़े पे दे के उसका कॉमर्शियली बेनिफिट होता है कि बिजनेस कर रहा है वक़फ़ तो उसमें कॉमर्शियल आएगा। उसके बाद वक़फ़ जब रजिस्टर हुआ उसकी डेट आएगी, ने प्रॉपर्टीज़ के मेज़रमेंट देना है, जो प्रॉपर्टी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है उसका मेज़रमेंट देना है। वो जैसा स्क्वायर फुट में आएगा तो स्क्वायर फुट का ऑप्शन है, एकड़ में है तो वो एकड़ का ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो एरिया एग्जैक्ट होता है, जो PTR के पेपर्स में अपन को डिटेल्स मिल जाती है, वो एरिया अपने को एग्जैक्ट डालना है। वहाँ पे भी 4 डिजिट में डालना है, वो बड़ा नंबर है तो पॉइंट करके जो 0 0 या पॉइंट के बाद जो नंबर आता है पॉइंट में डालना है। अब ये डिटेल भरने के बाद एक 5वें पॉइंट पे, यही फॉर्म के अंदर 5वें नंबर पे दबान की इंफॉर्मेशन हमको लिखनी है कि हमारी प्रॉपर्टी तो वक़फ़ की है, उस पर दबान है या नहीं है। अगर है तो उस पर यस पे सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करना है। अब दबान है तो दबान किस तरीके का है, पूरी प्रॉपर्टी पे दबान है या आधी, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर पूरी पे है तो हमको फुल्ली करना है, और पूरी पे नहीं है, थोड़े पे है, थोड़े पे नहीं है, तो हम उसको पार्शियली सिलेक्ट करेंगे। मतलब पूरी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, समझो कि 20% भी एनक्रोच हुआ है, मतलब दबान हुआ है, तो वहाँ पे हम पार्शियली करेंगे।
उसके बाद जितना एरिया एनक्रोचमेंट में है, मतलब दबाण में है, उसकी डिटेल अपन को लिखना है, नाम लिखना है। और जिसने दबाण करा है उसका भी नाम लिखना है। फिर इसके बाद जैसे हमने ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एड्रेस के प्रूफ ने डिटेल दी थी, वैसे ही यहाँ पे अब प्रॉपर्टी की भी डिटेल देनी है कि वक़फ़ हो सकता है कि गुजरात की वक़फ़ ट्रस्ट हो लेकिन प्रॉपर्टी वक़फ़ हरियाणा की हो, तो हमको वो भी डिटेल लाना है कि हमारी वक़फ़ की प्रॉपर्टी कहाँ है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी कौन से राज्य में वो बताना है, कौन से ज़िले में है वो, कौन से तालुका में है वो, और उसकी पूरा एड्रेस डिटेल हमको लिखना है। अब वाकिफ़ की भी डिटेल लिखना है। वाकिफ़ का मतलब वो होता है कि जिसने प्रॉपर्टी वक़फ़ में दी है, अभी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। तो उसमें जिसने प्रॉपर्टी दी है उसका भी नाम लिखना है। वक़फ़ में जिसने वक़फ़ करी है उसकी भी डिटेल, नाम, नंबर, पूरा नाम लिखना है। फर्स्ट नेम मतलब उसका नाम, लास्ट नेम मतलब उसकी अटक, और मिडल नेम मतलब उसका अब्बा का नाम, और उसका रिलीजन भी सिलेक्ट करना है। जनरली वाकिफ़ कोई भी धर्म का हो सकता है, तो किसी प्रॉपर्टी को वक़फ़ करता है तो उसका धर्म भी अपन को, रिलीजन भी बताना है, और वो वाकिफ़ के भी पूरी एड्रेस कहाँ रहता है उसका पूरा डिटेल भी हमको भरना है। इसके बाद अभी कोई प्रॉपर्टी हमने वक़फ़ की भाड़े पे दी है तो वो भाड़े की डिटेल भी डालना है। उसमें आएगा कि उसमें जैसे सिलेक्ट यही करना है, दी है या नहीं दी है, तो दी है तो यस पे सिलेक्ट करना है, नहीं दी है तो नो पे सिलेक्ट करना है। अब भाड़ूवाद कौन है उसका नाम लिखना है। उसके बाद कोई एग्रीमेंट हुआ है, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, उसकी डिटेल देनी है। रेंट कितना आता है उसकी डिटेल देनी है, और प्रॉपर्टी की डिटेल देने की है। इसके बाद वक़फ़ का जो इनकम है उसके बारे का एक फोर्थ ऑप्शन आएगा, उसकी इनकम के बारे में हमको डिटेल भरनी है। जैसे सालाना जैसे हम सीए के पास वो करवाते ही है, तो वो सिलेक्ट करना है, ईयर वाइज है, फाइनेंशियल ईयर वाइज है, उसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे 2021-22 का हमारी जो इनकम आई है वो इनकम को भी हमको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद जो हमारा खर्च हो रहा है उसकी भी डिटेल देनी है। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी पे कोई दावा, दुवी, तकरार के डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसकी डिटेल हमको यहाँ पे भरने की रहेगी। अब वही ऑप्शन आएगा कि कोई दावा चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं आएगा, नहीं चल रहा है तो उस पर नो सिलेक्ट करेंगे। कहाँ चल रहा है वो दावा, कहाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, वक़फ़ में चल रहा है, या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी डिटेल हमको देना है। किसके सामने चल रहा है उसकी डिटेल देनी है, और अभी वो केस का क्या स्टेटस है, मतलब अभी कहाँ पे वो केस स्टेज पे, कौन से स्टेज पे अटका है, वो डिटेल देनी है। डेट, केस कब फाइल हुआ उसकी डिटेल देनी है। जजमेंट आ गया है तो यस करना है, जजमेंट नहीं आया तो नो करना है। और जजमेंट आने के बाद वो जजमेंट पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी डिटेल देनी है। फिर इसके बाद जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको अपलोड करना है, उसकी डिटेल्स देनी है। जो प्रॉपर्टी का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, जो हमको जैसे हमारी भाषा में मामलतदार कचहरी से जो हमको मिलता है, वो लैंड रिकॉर्ड की भी हमको निकालना है। वो जैसे लिस्ट में है वो सारी डिटेल्स पेपर की, उसको भी अपलोड करना है। प्रॉपर्टी के फोटो चारों साइड से खींच के उसको अपलोड करना है, वो भी वहाँ पे एक ऑप्शन है। तो प्रॉपर्टी के फोटो जो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही शायद ये सारा आ जाता है, तो फोटो भी पाड़ना है, ऑप्शन है अपलोड करना है वक़फ़ के फोटो को, वक़फ़ यानी प्रॉपर्टी, वक़फ़ प्रॉपर्टी, उसका सर्वे नंबर अपलोड करना है, और फील्ड सर्वे नंबर जो होता है उसको भी अपलोड करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर वापस से एक, जैसा मैंने पहले भी बताया था यूज़र के टाइम पे, वापस हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म है, उसको कंफर्म करके यस करना है। अब यस करने के पहले वापस से हमको चीज़ें देखना है, अगर नहीं समझ आती तो रुक जाना है, सबमिट नहीं करना है, किसी से पूछ लेना है, या जो सेंटर काम होंगे वहाँ पे कंफर्म कर लेना है।
उसके बाद यस करने के बाद ये हमारी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वेबसाइट पे अपलोड हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी करना है तो वापस हम लॉग आउट करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन वो जो ऑप्शन है वापस जाएंगे वहाँ पे। अब जो रजिस्टर कराएगा अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है मुतवल्ली तो उसको वापस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है, अब डायरेक्ट साइन इन करना है और दूसरी प्रॉपर्टी को अपलोड करना है। अब इसमें कोई किसी को क्वेश्चन हो, ये एक प्रोसेस पूरा बता दिया, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकता है, ये जो वेबसाइट के अलावा नहीं समझ में आया। और जो दूसरा है वो जो सेंटर कायम होने वाले हैं वहाँ पे भी इंसान चले जाएगा तो समझ में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए भी चले जाना चाहिए तो अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो इंक्वायरी हो तो। गाड़ी नंबर 7575 4 व्हील है, उसको ज़रा साइड में हटानी पड़ेगी। अभी ये सारी बातें हुई है, पर जैसे अब हमारे वो सब साथी होंगे जिनके लिए ये सब करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये भेजामारी कौन करे, क्योंकि ये नई भेजामारी आई है, इसके लिए हम सब नहीं कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो 10-10, 15-15 गांव नज़दीक पड़ते हो तो वो एक गांव को सेंटर बना दिया जाए। फिर उनमें से आप 2 लड़के तय कर दो जो कंप्यूटर चलाते हो या आपके यहाँ एडवोकेट हो, तो एक सेशन जो है ना 10 गांव के बीच के 2 लड़के दे दो, वो सब मिला के हम डबोई बुला लेवे और डबोई में बुलाकर उन बच्चों को जो है कंप्यूटर के ऊपर पूरा एक फॉर्म भर के ना उनको सिखा देवे। तो मैं समझता हूँ कि ये आसानी हो जाएगी। हर आदमी का काम भी नहीं है, वहाँ जाके फ़ाइल पे बच्चों को बैठ के हम रजिस्टर करवा देवे। तो तमाम हजरात से गुजारिश है, उसके बाद हमारे मुफ्ती साहब पूरी तरतीब बना देते हैं। पहले आप लोग बता दो कि भाई कौन कौन से गांव वाले किस तरीके से करेंगे, वो नाम भी लिख लो ताकि इसकी तरतीब बन जाए। और फिर वहाँ से 2 बंदे आप दो, तो डबोई में जिस दिन प्रोग्राम रखना है उस दिन हम 2 आदमी यहाँ भेज देवे और वो पूरा एक फॉर्म बच्चों को भर कर सिखा देवे ताकि हर जगह पे काम आसानी से हो जावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो उम्मीद पोर्टल के लिए जो सेंटर कायम करने हैं उसकी कुछ तरतीब सुन ली जाए। हज़रत मुफ्ती साहब ने वैसे मुख्तसर बतलाई भी दी है। यहाँ के आसपास के जितने इलाके जैसे डबोई हैं उसके आसपास के बहुत सारे गांव हैं, बोडेली हैं, नसवाड़ी हैं, उसके आसपास के जितने इलाके हैं, बोडेली के आसपास के इलाके हैं, इस तरह सारे इलाक़ों में जितनी भी हमारी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, तो जहाँ जैसी प्रॉपर्टीज़ है उसको सामने रखते हुए जैसे इस 8-8, 10-10 गाँव के बीच में एक सेंटर कायम किया जाए। वहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक सेंटर पर, एक तो अगर वहाँ एडवोकेट हो तो बहुत अच्छा, कोई वकील हो काम करने वाला जो अपना वक्त दे सकता हो तो बहुत अच्छा होगा। और अगर एडवोकेट नहीं है तो कम से कम दर्जे में ऐसे 2-3 लड़के हों जो अच्छे तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप चला सकते हो और वो ये पूरा जो फॉर्म फिल करना है पोर्टल पर, जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से फिलअप कर लेवे। उनके साथ अच्छा ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको स्कैन भी करना है। तो अगर स्कैनर हो तो बहुत अच्छा, स्कैनर नहीं है तो मोबाइल पर स्कैनर सॉफ्टवेयर आता है, तो साथ में उनमें का 1-2 लड़के ऐसे हो कि एक आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी सारी डिटेल अंदर डलवा रहा है और दूसरा एक लड़का है वो उनके डॉक्यूमेंट्स को पहले से स्कैन करके बिल्कुल रेडी कर लेवे। इसमें अगर एडवोकेट है तो वो तफसील भी समझा देंगे। आसान है तो आसान जो चीज़ें होगी ना वो तो वैसे ही अपलोड हो जाएगी, लेकिन मुश्किल जो चीज़ें हैं उसमें एडवोकेट का काम रहेगा। अगर वो हल नहीं कर पाते तो फिर जैसे मुफ्ती साहब ने बताया था कि बड़ौदा में एक पूरी एडवोकेट्स की टीम बनी हुई है, वो इन जो पेचीदा मसाइल है, जो पेचीदा डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेचीदा ऐसी प्रॉपर्टीज़ है उनको किस तरह सोल्व करना, वो मुस्तकिल माशाल्लाह मेहनत कर रही है। अगर उनसे कोई बातें हैं ऐसी हैं जो मुश्किल है जो उनसे सोल्व नहीं हो पाएगी तो फिर उसके ऊपर एक टीम है। तो इस तरह ये जितने भी हमारे जितने ज़्यादा सेंटर बनेंगे उतना हमारे काम में आसानियाँ बढ़ेगी। अगर समझो 2-4 गाँव के बीच में एक सेंटर है और उस सेंटर पर काम करने वाले 2-3 बंदे 2-3 लैपटॉप वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा जल्दी हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को हम उसमें एंट्री डालेंगे उतना हमारा वक्त भी बचेगा, बहुत तरतीब के साथ काम होगा, बहुत बड़ा काम चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा।
तो जितने ज़्यादा हमारे सेंटर्स होंगे और हर सेंटर पर अगर 2-2, 3-3 सिस्टम फिट की जाए, जैसे लैपटॉप अगर 2-3 बच्चे लेकर बैठ गए, उसी सिस्टम पर उसी सेंटर पर दूसरे 2-3 बच्चे एक लैपटॉप लेकर बैठ गए, तो एक साथ 2-2, 3-3 एंट्रीज का काम मुस्तकिल चलेगा। तो ये एक तरतीब होती है। जैसे बड़ौदा में पूरी सिटी में तकरीबन 21 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें हर सेंटर, हर 4-4, 5-5 सेंटर के ऊपर एक एडवोकेट है जो उनकी निगरानी में वो तीनों चारों सेंटर काम करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी जो एडवोकेट से फिर उनका इंतखाब किया जाए और इन सेंटर्स के ऊपर उनकी निगरानी में इनको चलाया जाए, तो उसका एक वक्त तय किया जाए और उन वक्त को पब्लिक के सामने पेश किया जाए। और ये सेंटर बनाकर जितने हमारे आसपास के इलाके में जो वक़फ़ के जो जिम्मेदारान हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, हो सके तो उनकी बहुत सारे तो माशाल्लाह यहाँ हाजिर होंगे, हो सकता है कोई नहीं आ सके हैं जो हमारे इलाकों में हैं, उनसे मुलाकात करके उनको तरगीब दिलाकर उन सेंटर पर बुलाया जाए, उनको लाया जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ की सारी तफसीलात को पोर्टल पर जो है उसकी एंट्री कराई जाए। तो ये होगा हमारा छोटा सा काम। ये असल फील्ड वर्क है। एक तो होता है कि हमने कोई बात सुन ली, समझ ली, लेकिन एक होती है कि अपने फील्ड पर आकर उस पर काम करना। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। तो यहाँ जितने जिम्मेदारान बैठे हैं, ये अभी आपके सामने ये किस तरह सेंटर कायम किए जाएंगे, ये तफसील लिखी भी जाएगी। तो आप अपने अपने इलाकों में किस तरह सेंटर कायम करने हैं, कौन किस तरह तैयारी करेगा, किसके पास एडवोकेट्स, कौन एडवोकेट के साथ और किसके पास कैसे लड़के होंगे, ये तरतीब आज बैठ के बनानी है मुख्तसर में। तो हमारे मकबूल भाई आपसे पूछेंगे, जो इलाके वाले अपने यहाँ सेंटर कायम करना चाहते हैं वो खड़े होकर बतलाएँ, उनकी पूरी डिटेल लिखी यहाँ पर नोट की जाएगी और फिर इंशाल्लाह आगे की तरतीब पेश की जाएगी। जी, जो इलाके वाले अपने यहाँ सेंटर कायम करना चाहते पहले वो बतलाएंगे। जी आप। नसवाड़ी तो बहुत बड़ा इलाका है। नसवाड़ी के आसपास कई सेंटर्स होने चाहिए, एक सेंटर काफ़ी नहीं रहेगा इस। जी जी, बहुत अच्छा। तो एक तो मुस्तकिल मेन से, लेकिन उसके आसपास जो इलाके हैं ना वो बढ़ाए जावे। जी, आप लोग ये तरतीब बना लोगे आसपास की सब? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। जी, और इलाके वाले? बोडेली में एक सेंटर होगा। लिखो ने मौलाना नहीं, नाम के साथ लिखो, जो नाम लिखा रहा है उनका नाम, मोबाइल नंबर दोनों। जी, बोडेली और इधर से सीनोर बतलाया है। हाजी साहब का नाम लिखो। जो इसके अलावा जो गांव वाले हैं, छोटे गांव वाले, वो भी अपने यहाँ सेंटर कायम करना चाहते, वो भी बतला देवे। सीनोर हो गया, बोडेली हो गया। नाम, मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें लिखवानी, यहाँ कर लिखवा दे, बहुत अच्छा, उनकी पूरी एंट्री हो जाएगी। जी, और इलाके वाले? नाम साथे लखजो ने नंबर, मोबाइल नंबर लखजो। मौलवी शोएब लखो। जी, और इलाके वाले? सीनोर वाले भी लिखा है, सीनोर वाले नंबर लिखा है। नंबर है मेरे पास। सीनोर नसवाड़ी सेंटर पर बैठने वाले जो लड़के होंगे उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह इसको फिलअप करना है।
ये सबको बुला ले संडे देख के बीच में शॉर्ट टाइम में हफ्ते 10 दिन एक टाइम रखो जो ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर हो तो सीखने की पहले वो टाइम एक डेट डिक्लेयर करो कि बाहर से भी आना है तो पता चले एक संडे है એમાં જે લોકો આપણા સેન્ટરનું નામ લખાવશે ને એટલા જણને જ બોલાવવાના એટલે એની જ વાત કરે છે એટલા લોકોને જ ફોન કરવાનો બધાનું કામ કરવાનું एक बात ये भी सुन लो कि जो वक़फ़ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले अपनी तैयारी कर लेवें। वो डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक अगर कोई बात मालूम करनी है या कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो डब्बोई में शब्बीर भाई एडवोकेट है, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक़ से। अस्सलामुअलैकुम। जो डभोई के अंदर अभी फ़िलहाल 2 सेंटर के नाम तो आ चुके हैं। एक जमीयत उलमा हिंद कड़ी वाला शॉपिंग सेंटर में मेहदविया सार्वजनिक हाई स्कूल डभोई। तीसरा सेंटर रहेगा कड़ियावाड़ में, मतलब जहाँ पे जो नज़दीक पड़े वो लोग वहाँ जाके सेंटर पे अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अपने यहीं आना है। देवलिया वाले देवलिया जा सकते हैं, नसवाड़ी, सिनौर, बादरपुर, बोड़ेली, गोपालपुरा, ये सब जगह पे ये फॉर्म भरने के सेंटर हो गए। और जो लोग इसके अंदर जो मतलब फॉर्म भरने वाले लड़के हैं उनकी एक अलग सी मीटिंग बुलाई जाएगी और उनको प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग पूरी ट्रेनिंग देने के बाद उसको वहाँ पे वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वकील की टीम हमारे पास मौजूद है, आप हमारा संपर्क कर सकते हैं।